ویلکم ٹو فریاز کچن۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز کو سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک ضرور کیجیے۔ السلام علیکم ویورز، ہماری ماما سے پوچھتے ہیں کہ آج ہمیں کیا سکھانے لگی ہیں۔ ماں آج آپ ہمیں کیا بنانا سکھا رہی ہیں؟ آج میں نے آپ لوگوں کو قیمہ بھرے ہوئے کریلے اور ساتھ میں تندوری روٹی سکھائی ہے۔ یہ میں آپ کو بتاتی ہوں یہ میں نے کیسے بنائی ہیں۔ چلیں آئے میں آپ کو اس چیز کی ریسپی دیتی ہوں۔ یہ بہت ایزی ہے، جلدی تیار ہونے والی، ساتھ میں نے لسی بنائی ہے اور گھر میں نے مکھن نکالا ہے۔ بیٹا سب سے پہلے آپ نے 1 kg ہم نے کریلے لیے ہیں، ان کو باریک باریک اوپر سے چھلکا اتاروں گی، زیادہ نہیں اتاروں گی، ٹھیک ہے۔ اس طرح یہ آپ نے بالکل ہلکا سا، اور اوپر سے جو ڈنڈی ہے نا اس کو بالکل نہیں آپ نے اتارنا۔ اس طرح میں نے سارے کریلے چھیلنے کے بعد ہلکا سا اس پر نمک لگا دیا ہے۔ اس کو ہمیں آدھا گھنٹے کے لیے ایک سائڈ پہ رکھ دیں گے۔ تب تک میں آپ کو اس کا مٹیریل تیار بتاتی ہوں، ہم نے اس کے اندر فلنگ کرنی ہے۔ میں نے پریشر کوکر میں 1 کپ آئل ڈال دیا ہے۔ اس کے اندر میں 4 عدد کٹے ہوئے پیاز ڈالوں گی۔ آپ نے اس کو ہلکا سا فرائی کرنا ہے۔ جب یہ ہلکا براؤن ہو جائے گا لائٹ سا، تو میں اس کو ایک باؤل میں نکال دوں گی۔ سب کو نکالنے کے بعد یہ دیکھیں میں نے پورا نکال لیا گھی۔ اب گھی کے بغیر ہم لوگ 2 عدد پیاز اس کے اندر دوبارہ پریشر کوکر میں ڈالیں گے۔ گھی بالکل نہیں ہم نے ڈالنا۔ 2 عدد جو باؤل میں رہ گیا پیاز اور گھی، وہ ہم نے ایک سائڈ پہ رکھ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو ہم نے 2 عدد پیاز پریشر کوکر میں ڈالے تھے، اب اس کے اندر 1 kg میں قیمہ ڈالوں گی۔ قیمہ ڈالنے کے بعد اس کے اندر 1 ٹیبل اسپون لہسن کا پیسٹ ڈال دیں گے اور ½ ٹیبل اسپون ادرک کا پیسٹ ڈال دیں گے۔ 1 ٹی اسپون اس میں بھر کے آپ نے نمک کا ڈال دینا ہے، 1 ٹی اسپون ہلدی کا، اور 1 ٹیبل اسپون بھر کر آپ نے اس میں لال مرچ کا ڈالنا ہے۔ ڈال کر اس کو قیمے ہلدی کو اچھا مکس کر لیں ہم لوگ۔ تو 2 گلاس اس میں اپنے پانی ڈال کے 15 منٹ کے لیے اس کو پریشر لگا دینا ہے۔ کے بعد آپ نے کریلوں کو اچھی طرح دھونا ہے۔ دھونے کے بعد ہم لوگوں نے کپڑا لینا ہے، کپڑا لے کے اس کو ایسے ہاتھ سے اچھی طرح اس کو ڈرائی کرنا ہے آپ نے۔ جب یہ اچھی طرح ڈرائی ہو جائے گا، اسی طرح آپ نے سارے کریلے ڈرائی کر لینے ہیں اپنے۔ تو آپ نے کریلے کا درمیان میں ہلکا سا ہم نے کٹ لگانا ہے، یہ دیکھیں بالکل درمیان میں، زیادہ بڑا کٹ نہیں لگانا۔ اور پھر آپ نے ایک چمچ کی مدد سے ایسے اس کا منہ کھول کے ہلکا سا کھولنے کے بعد اپنے چمچ کی مدد سے اس کے اندر سے سارے بیج نکال لینے ہیں۔ سارے بیج اسی طرح سارے کریلوں میں سے نکال لینے ہیں۔ اب ہم لوگوں نے اپنا پریشر کوکر کھول لینا ہے۔ یہ دیکھیں قیمہ بالکل ڈرائی ہو چکا ہے۔ ہم نے اس کے اندر کوئی آئل کوئی گھی نہیں ڈالنا۔ آپ نے اس کو اسی طرح بھوننا ہے، اچھا بھوننا ہے۔ جب یہ اچھی طرح بھون جائے گا تو آپ نے اس کے اندر سبز دھنیا کٹا ہوا ڈال دینا ہے، سبز مرچیں ڈال دینی ہیں، تھوڑا سا میں نے اس کے اندر زیرہ ایڈ کر دینا ہے۔ آپ نے گرم مسالہ تھوڑا سا ڈال دینا ہے۔ پھر میں نے سوکھا دھنیا اور زیرے کا بنایا ہوا مٹیریل ہے، وہ میں نے 1 چمچ ڈال دینا ہے۔ تھوڑا سا آپ نے اس میں بلیک پیپر ڈال کے یہ اچھی طرح ہمارا بن چکا ہے۔ اب ہمارا قیمہ بالکل تیار ہے۔ اب بننے کے بعد ہم لوگ اس طرح کریلے کا منہ کھول کر اس کے اندر آپ نے آہستہ آہستہ قیمہ بھرنا ہے، بلکہ چمچ کی مدد سے آپ نے قیمہ کریلے کی دونوں سائڈوں پہ دبا دبا کر اندر تک لے کے جانا ہے، تاکہ یہ اچھی طرح اندر چلا جائے، کہیں سے یہ خالی نہ رہ جائے۔ اس طرح اچھی طرح آپ نے بھرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہاں سائڈیں ادھر سے دونوں سائڈوں کو اچھی طرح دبا کر یہ دیکھیں آپ نے اس کو اس طرح اس کے اندر اچھی فیلنگ کرنی ہے۔ آپ کے کریلے بہت مزے کے تیار ہو جائیں گے۔ اسی طرح آپ نے دوسرا کریلا لینا ہے، اس کو بھی ایسے بھرنا ہے۔ اسی طرح آپ نے سارے کریلے تیار کر لینے ہیں۔ اب یہ ہمارا مٹیریل بچ چکا ہے، تو یہ ایک دھاگا لینا ہے، آپ نے کریلے کو ایسے زور سے پکڑنا ہے، دبا کے رکھنا ہے، بالکل ایسے منہ اس کا دونوں سائڈوں سے، اور دھاگے کی مدد سے اس طرح ہم نے اس کو فولڈ کرتے جانا ہے تاکہ یہ اچھی طرح بند ہو جائے۔
अगर उसके अंदर से थोड़ी सी वेस्ट निकल रही है तो आप निकाल के उसके साइड पे रखते हैं। इसी तरह आपने सारे करेलों की फिर अच्छी तरह धागे से लपेट कर इसको बंद कर लेना है। ऑयल को हमने गरम कर लिया है। करेले जिनकी हमने फिलिंग की है उसको हम एक एक करके ऑयल में डाल लेंगे। सारे करेले ऑयल में डालने के बाद अब आपने इसको बहुत हल्की आंच पे फ्राई करना है ताकि ये अंदर तक पक जाएं। जब तक करेले पक रहे हैं तब तक हम दूसरी साइड पे इसका मसाला बनाते हैं। दूसरी साइड पे मैंने कढ़ाई ली है, उसके अंदर थोड़ा सा मैंने ऑयल डाला और 4 अदर इसमें टमाटर डाल दूंगी। ये टमाटर डाल के मैं इसको अच्छी तरह फ्राई करूंगी, क्योंकि ऑयल मैंने इसलिए कम लिया है क्योंकि जो मैंने प्याज पहले से फ्राई करके रखा हुआ है उसके अंदर ऑयल पहले से मौजूद है, तो मैं वो भी इसके अंदर डालूंगी तो फिर ये बहुत मज़े की है। देखिए अब हम वो प्याज इसमें डाल देंगे, उसके अंदर पहले से ऑयल मौजूद है जिसकी वजह से हमने पहले टमाटरों में ऑयल कम डाला है। अब इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह डालकर मैं भूनूंगी। अच्छा भूनने के बाद अब इसके अंदर मैं थोड़े से स्पाइस डालूंगी। आपने इसको नॉर्मल आंच पर हल्का सा भूनते रहना है ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, टमाटर भी गल जाएं और प्याज तो पहले से हमारा थोड़ा नरम था, लेकिन ये दोनों चीज़ें इसमें अच्छी तरह मिक्स हो जाएंगी। इसलिए मैं इसको हाई बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको बनाना है। जब ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे तो फिर मैं इसके अंदर स्पाइस डाल दूँगी। अब मैं इसके अंदर 1 टीस्पून भर के नमक का डालूँगी, थोड़ी सी इसके अंदर मैं हल्दी डाल दूँगी, और 1 टीस्पून ही भर के इसके अंदर मैं लाल मिर्चों का डाल दूँगी, क्योंकि कीमे में हमारे पहले से सारे स्पाइस मौजूद हैं। स्पाइस हमने डाले हैं, ये प्याज और टमाटरों के लिए बहुत है, क्योंकि हम लोगों ने इसके अंदर जो बचा हुआ कीमा अब वो इसके अंदर ऐड करेंगे, क्योंकि कीमे में पहले से सारे स्पाइस मौजूद हैं, इसलिए मैंने इसके अंदर स्पाइस ज़रा नॉर्मल डाले हैं। अब जो हमारा अच्छा ये भुन चुका है प्याज और टमाटर, तो इसके अंदर मैं बचा हुआ कीमा डाल दूँगी। कीमा डालकर आपने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। ये अच्छा भुनने के बाद हमारा कीमा बहुत सॉफ्ट हो चुका है। अब इसके अंदर मैं ब्लैक पेपर डालूँगी, थोड़ा सा इसके अंदर सूखा धनिया जो ज़ीरा मैं तवे पे भूनती हूँ वो डाल दूँगी इसके अंदर। और 1/2 टीस्पून इसके अंदर मैं गरम मसाला डाल दूँगी। डालकर अपने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। अब इसके ऊपर धनिया और सब्ज़ मिर्चें डाल दूँगी। आपने इसको अब 2 मिनट बनाना है अच्छा, ताकि इसके अंदर सारे स्पाइस मिल जाएं। तो हमारी ग्रेवी बिल्कुल तैयार है। फिर 1 से 2 मिनट इसका दम लगाना है हमने, तो हमारी ग्रेवी अच्छी बनकर तैयार हो चुकी है। ग्रेवी तैयार हो चुकी है और दूसरी साइड पे ये देखिए हम लोगों ने जो करेले रखे थे, एक साइड पे उसने कलर चेंज कर लिया, तो हम इसकी दूसरी साइड कर दूँगी। इस तरह आपने इसको हल्की आंच पे बनाते जाना है। ये देखिए इसने कलर चेंज करना शुरू किया हुआ है। अब थोड़ी देर और बनेंगे तो इंशाल्लाह बड़े सॉफ्ट और बड़े क्रिस्पी से हमारे करेले तैयार हो जाएंगे। लेकिन आपने इसको बहुत मध्यम और लाइट आंच पे बनाना है, ज़्यादा तेज़ आंच नहीं करनी, ताकि अंदर तक ये पक जाए। ये हमारे करेले अब बिल्कुल रेडी हैं, तो मैं इसको प्लेट पे निकाल लूँगी। तैयार हो चुके हैं। तो अब मैंने ये आटा लिया है जो घर पे आम नॉर्मल हम लोग गूंथते हैं, इससे मैं आपको तंदूरी रोटी बनाना सिखाती हूँ। ये आपने बेलने की मदद से अच्छा से रोटी को बेल लेना है। जब रोटी हमारी अच्छी बेल चुकी है अब, तो मैं आपको बताती हूँ कि तंदूरी रोटी आपने कैसे तैयार करनी है। आपने तवे को पहले से मैंने इसको काफ़ी गर्म कर लिया हुआ है, फुल आंच पर ये गर्म हो चुका है। अब मैं रोटी जो बेली हुई थी उसको एक साइड पे मैं अच्छा पानी लगाऊंगी, ताकि अच्छी तरह जो रोटी हमने तवे पे लगानी है उस साइड पे हमने अच्छा पानी चारों तरफ लगा लेना है, ताकि वह तवे के साथ अच्छा चिपक जाए। तो आप ये देखें, इस तरह आपने तवे के ऊपर रोटी डाल देनी है।
तो 2 मिनट के बाद देखिए इसने बबल देना छोड़ इसे फूल चुकी है, इसका मतलब है नीचे से थोड़ी 2 मिनट के बाद पक चुकी है। ये अब ये ऐसे सारी पकी हुई है, तो मैं अब इसका तवा उल्टा करके इसको दूसरी साइड से पकनाऊँगी। इस तरह अपने दोनों हाथों से तवा पकड़ लेना है, इसको ऐसे ऊपर रखना है ताकि हमारी दूसरी साइड से भी रोटी अच्छी बन जाए। खूबसूरत कलर इस पर आना शुरू हो गया, लेकिन अभी भी हम लोग इसको दोबारा बनाएंगे ताकि इस पर खूबसूरत सा ब्राउन सा कलर आ जाए। ये देखें कितनी मज़े की हमारी क्रिस्पी सी रोटी तैयार हो चुकी है। ये मैं आपको दूसरी साइड करके दिखाती हूँ, दूसरी साइड से भी ये कितनी क्रिस्पी और ज़बरदस्त किस्म की ये देखें तंदूर की लग रही है, कितने मज़े की तंदूर की रोटी की तरह ये तैयार हो चुकी है। ये देखिए इसकी बैक है, ये फ्रंट है। ये देखिए कितनी क्रिस्पी हमारी रोटियाँ तैयार हो गई हैं। अब इनके ऊपर मैं घर में बनाया हुआ मक्खन, क्योंकि अगर हमने करेले बनाया साथ में लस्सी भी बनाई है तो उसके ऊपर ये फ्रेश मक्खन निकला था। क्योंकि अगर आप घर पे करेले बना रहे हैं साथ में तंदूर की रोटी और घर में तैयार की हुई लस्सी ना हो तो उसका जायका ही कुछ नहीं, मज़ा नहीं आता। यकीन करें इतनी मज़े की हमारी रोटियां अगर बनी हैं घर में जैसे आप बाज़ार से लेके आए, बल्कि बाज़ार से भी ज़्यादा क्रिस्पी और मज़े की बनी है। अगर पॉसिबल होता तो मैं आपको ज़रूर खिलाती, ट्राई करवाती। साथ में ठंडी ठंडी हम लोगों ने लस्सी बनाई है, वो तो बहुत ही मज़े की। यकीन करें मुँह में पानी आ गया, दिल चाह रहा है मैं फटाफट बस खा लूँ। अब मैं रोटी को काट के दिखाती हूँ आपको। ये देखें ये रोटी मैं काट कर 4 पीस करके इसके जो हमने करेले तैयार किए थे, अब मैं इसको खोल के दिखाती हूँ। इसको खोलना कोई मुश्किल काम नहीं है, ये फटाफट खोलने वाले हैं। जो मैंने तरीका आपको बताया आपने ऐसे ही करना है। खोल कर अब मैं इसको काट के दिखाती हूँ आपको। यकीन करें इतने क्रिस्पी और मज़े के करेले बने हैं ना, आप भी ट्राई करेंगे और प्लीज़ मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ये देखें अंदर से इसकी ये पता चलता है जब इसकी लेयर जो है वो बहुत बारीक हो चुकी हैं, क्योंकि अच्छा फ्राई हो चुका है और इसका मसाला अंदर तक भरा हुआ है बिल्कुल। ये देखिए दोनों साइडों पे आप देखें अच्छी तरह ये अंदर तक इसकी फीलिंग है। बहुत मज़े के, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये कोई इतना मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है, झटपट तैयार हो जाते हैं। बहुत मज़े के कीमा करेले तैयार हुए हैं। यकीन करें जो सीखने वाली बच्ची हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा। अगर आपको पसंद आ रही हैं ये चीज़ें तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग और सीखें। आप मुझे सब्सक्राइब करें ताकि मुझे समझ ये आपकी तरफ से गिफ्ट होगा। अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ फीडबैक में कमेंट कीजिए, ज़रूर बताएं। और आपको कोई नई रेसिपी सीखनी है मुझे वो भी बताएं, मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर दूँगी। जो आपको पसंद है, आप चाह रही हैं कि मैं ये बना के दूँ, मैं दूँगी। ठीक है, ये देखें ठंडी ठंडी लस्सी, तंदूर की रोटी और ये करेले इतना मज़े के हैं ना कि आप क्या मैं आपको बताऊँ, बहुत मज़े का क्रिस्पी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा।